Hello, dear young friends. Our next topic is properties of compounds. Okay, so a compound, its first property is a compound is always made of same elements combined together in fixed proportion by mass. Okay, so what is the meaning of this? What we take, suppose I take an example, water. Now, in water, what are the elements? Hydrogen and oxygen. So, they are always combined in the fixed proportion, that is 1:8. If I change this proportion, I won't get water. Okay, then I won't get the compound water, that is H2O. So, to get H2O, I should always have the elements hydrogen and oxygen mixed in the same proportion 1:8. Okay, see, suppose if I take another example, iron sulfide. So to make iron sulfide, what I take? Iron and sulfur, and they are mixed in the proportion 7:4. Okay, if I take more iron and less sulfur, what will happen? The extra iron that I have taken, that will remain unreacted, and always it will react in the ratio 7:4 to get iron sulfide. So what we are saying, the same elements, okay, the compound, and always it will be made up like water will be always made of hydrogen and oxygen, and that too they will be mixed in the same fixed proportion. Clear? Okay, same way iron sulfide also mixed in the same proportion 7:4. So what we are हम इधर क्या बताना चाह रहे हैं कि it is mixed in the same fixed proportion. Clear? Okay, now second point, chemical compound is formed as a result of chemical reaction and its properties are entirely different from those of its constituents. Okay, so what is the meaning of this? As a result of chemical reaction. जब तक chemical reaction नहीं होगा, chemical compound won't be formed. So to form a chemical compound, always a chemical reaction takes place, and the resulting compound that you get when these elements are reacting, so the property of this, now if I take an example of iron and sulfur, when it combines you get iron sulfide. The properties of iron sulfide की जो properties होंगी वो iron और sulfur से totally different होगी. It will not match at all. Okay, so iron sulfide की properties iron और sulfur से totally अलग होगी. So what we are saying, chemical compound is formed as a result of chemical reaction and its properties are entirely different from those of its constituents. So constituent elements जो हमने लिए थे उससे इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी. ओके, नाउ अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या बनता है? वाटर. ओके, सो वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट होगी. फाइन. सो जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज उसके अलग अलग एलिमेंट्स को जब हम लेते हैं तो उससे टोटली डिफरेंट होती है. ओके, दिस इज द सेकेंड पॉइंट. और हमेशा केमिकल कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो केमिकल रिएक्शन से ही फॉर्म होगा, इधर डायरेक्टली मिक्स करने से नहीं होगा. जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा यू विल नॉट गेट दिस न्यू कंपाउंड. सो नए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट से टोटली अलग होगी. ओके ओके फाइन. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मीन्स. फिजिकल मीन मतलब हम हाथ से ऐसे हाथ डाल के अलग नहीं कर सकते हैं. अभी पानी अगर आप लेते हो, पानी में अगर हम हाथ डाल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी अलग नहीं कर सकते. करेक्ट है? तो फिजिकल मीन्स, फिजिकल मतलब हाथ से या चम्मच से या किसी भी और से तुम उसमें खेलोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कभी अलग नहीं होता है ना. ओके, सो हाइड्रोजन, वाटर में से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं. सो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या थे? वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो हम वाटर में हाथ डाल के या उसमें डांस करके भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते. ओके, फिजिकल मीन्स, फिजिकल मेथड से. केमिकल से हम ट्राई कर सकते हैं मगर फिजिकल मीन से अलग नहीं होगा किसी भी कंडीशन में. अब अ कंपाउंड हैज अ डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब कंपाउंड अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा.
करेक्ट। और कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। तो अब मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री रहेगा और वो फ्रीज भी 0 डिग्री पे होता है, करेक्ट है? यस, ओके। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। नाउ क्लियर दिस पॉइंट। उसको डेफिनेट मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, जैसे वाटर का मॉलिकुलर फॉर्मूला H2O रहेगा हमेशा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तुम उसमें एक H और 2 ऑक्सीजन ऐसा नहीं ले सकते हो, ऑलवेज यू हैव टू टेक H2O। यही फॉर्मूला वाटर इंडिकेट करेगा। ओके, नाउ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। एनर्जी, जब भी केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है तो एनर्जी या तो रिलीज होती है, इवॉल्व मतलब निकलती है, या एब्जॉर्ब होती है व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। सो कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होता है तो हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है हीट। ओके, हीट निकलती है बाहर। और आयरन सल्फाइड जब फॉर्म होता है तो हीट एब्जॉर्ब होता है। ओके, मतलब वो हीट खींचता है बाहर से अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने के टाइम तुम अगर टेस्ट ट्यूब में बनाओगे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो उसमें जब बाहर हाथ लगाओगे तो हीट इवॉल्व होती है, तो वहाँ गर्म फील होगा। और यहाँ पर जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ वो हीट खींच रहा है, तो बाहर की तरफ थोड़ा ठंडा फील होगा क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया है। ओके, नाउ अ कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस मतलब उसमें हमें कुछ अलग दिखाई नहीं देता है। जैसे वाटर, वाटर को आप ग्लास में लोगे तो हमें सभी जगह में वाटर ही दिखाई देगा, तो होमोजीनियस ना, इट इज़ अ होमोजीनियस सब्सटेंस। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस रहेगा। आयरन सल्फाइड ले लो तो पूरा आयरन सल्फाइड ही दिखाई देगा। यस, क्लियर। तो टोटल कितने पॉइंट्स थे? 6 पॉइंट्स। ऑल द 6 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? अ कंपाउंड इज ऑलवेज मेड ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। फिक्स्ड प्रपोर्शन में हम उसे कंबाइन करते हैं। केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन and its properties are entirely different from those its constituents। तो केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होता है और जो ये आपको कंपाउंड मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होती है, करेक्ट? आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज आयरन और सल्फर से टोटली डिफरेंट। सो रिजल्ट जो केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होगा और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज entirely different from those of constituents। Okay, third, a compound cannot be separated into constituents by physical means। physical means से हम उसे अलग नहीं कर सकते किसी भी। physical means मतलब हाथ से या चम्मच से, ओके, किसी भी तरह हम हाई वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते। कंपाउंड का हमेशा फिक्स्ड डेफिनेट मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। एनर्जी जब कभी भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो या तो एनर्जी हीट के फॉर्म, हीट या लाइट के फॉर्म में इवॉल्व होती है, मतलब बाहर निकलती है, या एब्जॉर्ब होता है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन के टाइम हीट इवॉल्व होती है। आयरन सल्फाइड फॉर्मेशन के टाइम हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, और कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। होमोजीनियस का मतलब कि सब पूरी तरीके से सेम दिखता है। पानी में हम हाथ डालते हैं, पानी पूरा ग्लास में अगर देखते हो तो सब जगह सेम, कहीं कहीं हाइड्रोजन कहीं कहीं ऑक्सीजन, ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो हमें कैसा दिखाई देता है? पूरी तरीके से वाटर हमें एक जैसा होमोजीनियस दिखाई देता है। फाइन, ओके। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। ओके, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड हमने दोनों पढ़ लिए हैं, अब बस एक बार उसका डिफरेंस कर लेते हैं। मिक्सचर हमें कैसे मिलता है? 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर, और उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, करेक्ट है? कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स होते हैं और उसमें बिल्कुल भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। कंपाउंड्स में क्या होता है? रिएक्ट होकर नया कंपाउंड फॉर्म होता है। Yes, okay, mixture is formed as a result of physical change। इधर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। Yes, केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस। इधर फिजिकल चेंज,
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड फिल्ट्रेशन से, इवॉपरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन, मैग्नेट से। अगर आयन फाइलिंग्स और सैंड है तो हम मैग्नेट ले जाएंगे, आयन फाइलिंग्स अलग कर लेंगे, तो ये फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। और इसको कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही हम इसे अलग कर सकते हैं। मिक्सचर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाता है, मिक्सचर में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ठीक है, जैसे अगर आयरन और सैंड मिक्स किया है तो सैंड अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, आयरन अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, और इसके अंदर तो कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट से टोटली डिफरेंट रहेगा। यस, कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर जो जो सभी कुछ मिक्स है सभी अपना अपना दिखाएंगे प्रॉपर्टीज। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन। इसमें प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता है। यस, प्रपोर्शन जैसे अगर मैंने सैंड ज़्यादा लिया, आयरन पार्टिकल्स कम ले लिए, तो मैं किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स होता है मिक्सचर में, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है इसमें। यस, वेराज इसमें क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड प्रपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं मास से। जैसे हमने देखा था ऑक्सीजन वाटर में 1:8 में ही रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यस, तो कंपाउंड हैज अ डेफिनेट फॉर्मूला। मिक्सचर को फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, इसका फिक्स्ड मेल्टिंग फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, हमने देखे थे टाइप्स ऑफ मिक्सचर दोनों। और कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस ही होता है। ओके, इसमें क्या होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट ना तो एब्जॉर्ब होती है ना इवॉल्व होती है, कुछ नहीं होता है इसमें। और इसमें या तो एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी। क्लियर? ओके, सो मिक्सचर एंड कंपाउंड हमने पढ़ा है, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, सॉल्यूशंस। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट solutions. Thank you. If you like my video, kindly subscribe. Bye children.